Good afternoon, everybody. My name is Umashankar Akharia, and I'm an entrepreneur as well as a recruiter by profession. For last 15 odd years, I have been into recruitment business. I have done various type of recruitments which involves technical, non-technical, and otherwise also. I would like to share some tips with you. Today we are again going live with FP Live. And the idea is that how we can communicate with physical educators. There are so many types of professionals working in this particular field, and how in this different scenario, challenging scenario, how we all can connect with each other. Perhaps can share something which is going to be helpful for the professionals and try to make it a collaborative effort where it's all about sharing your information, share your knowledge, and growing together. So, in this PEFI FB Live series so far, we have invited professionals from sports like Bansal sir. He's a Dronacharya awardee. He talked about the coaching aspect. Then we also had Mr. Yaspal Solanki. He is from, Arjuna awardee, so a sports person who has excelled at the top. Also, we have focused upon the academic sides. So we had professors coming from different university who are like expert into their field. So we had like the Singh sir. So the idea is that we are trying to collaborate. We are trying to put academics as well as sports together and share some information with you. In the same series, today I am here in front of you, and my idea is to share information which is confined, which is restricted to how we can shift from education, which is like we have done some sort of course which is in college, and how we can shift towards corporate or rather career. So this is transition between your education and your career. This is a bridge. What kind of information can help you in filling this bridge? That is the whole idea. But I would also like to congratulate Physical Education Foundation of India. This is a not-for-profit organization started in 2008, and so far in last 12 years it has done immensely in the field of physical education and sports science. Most of you are about the various kind of bodies. And the feather in this has been that we have got a recognition from the sports ministry as well as a national sports promotion organization, NSPO. What is this NSPO? Have you heard it? कि NSPO क्या होता है? National Sports Organization. आई एम श्योर दैट मोस्ट ऑफ यू आर ऑलरेडी अवेयर कि भाई फेडरेशंस क्या होती हैं, स्पोर्ट्स फेडरेशन कितने टाइप की होती हैं. या देर आर approximately 55 national sport federations, various sports, cricket, football, hockey, anything, you know it, you are from the same background. लेकिन national sports organization as of now there are only 8, which include your CBSC, where your AIU, All India Universities Association, which also include Isha Foundation, and three other specific sports thing as well, like Allan Shah Hockey Tournament. So that's a kind of organization. That is in 2019. In 2020 onwards, your Physical Education Foundation of India, PEF, is also going to be among that elite club, which is right now only 8 organizations are in that particular field. So this is a good thing, and all the efforts goes to PEFI team, which is led by our very own Dr. Piyush Jain. Most of you are already aware about him, you know him personally, or professionally as well. तो उनके साथ मतलब काम करने का सौभाग्य मुझे भी काफ़ी बार मिला.
फॉर लास्ट 5-6 सालों से पैफी के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ। किसी ना किसी कैपेसिटी में मैं उसके साथ में काम करता हूँ। यू कैन सी दैट आई हैव गॉट अ शर्ट एज वेल, which I this PEFI is close to my heart. Why? Because sports something I used to schools, और अभी भी मुझे उसका पैशन है। मैंने कुछ रिसर्च भी करी है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करी है कि क्या चीज़ें हैं जो हमारे को अभी भी स्पोर्ट्स के अंदर आगे नहीं बढ़ा पा रही हैं। सो आई हैव गॉट अ रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट। Coming back to what I mean, how what kind of experience I have. So as I have shared with you that मेरा ज़्यादातर एक्सपीरियंस जो है अराउंड 12 years was with corporates, different corporates में HR था, ह्यूमन रिसोर्सेज, HR ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में काम किया। रिक्रूटर था, रिक्रूटमेंट मतलब सिर्फ और सिर्फ रिक्रूटमेंट, दिन रात रिक्रूटमेंट करता था। सो उसके बाद में लास्ट 5 years से मैंने एक द रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसी खोली, और उसके साथ में मैं एक जॉब पोर्टल भी बना रहा हूँ, जैसे Naukri.com है, एक जॉब पोर्टल startjob.in करके, and recruitment consultancy Eagles Hunt Recruitment Consultancy. So the idea is that I have been into recruitment business for good 17 years, and now I would like to share information with you how it can help you. So broadly मैं 4 चीज़ें कवर करने वाला हूँ कि आज क्या बोलेंगे, क्या चीज़ें कवर करेंगे। तो एजेंडा ऑफ टुडे, द फर्स्ट थिंग विल बी टू अंडरस्टैंड कि भाई अभी कोविड-19 के बाद में सिनारियो इकोनॉमी का कैसा होगा आपके लिए, फ्रॉम जॉब पर्सपेक्टिव या फिर करियर के पर्सपेक्टिव से उसका क्या कोई इम्पैक्ट होने वाला है। अगर होने वाला है तो उसको संभालना है, क्या चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, कैसे अपने आप को इससे बचा सकते हैं, और गॉड फॉरबिड अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे कैसे बच के अपने आप को मैन्यूवर करके निकल सकते हैं। कुछ टिप्स दूंगा, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। सेकंड एस्पेक्ट विल बी अबाउट कि जॉब कैसे सर्च करते हैं। इफ़ यू आर फ्रेशर, अभी कॉलेज से जस्ट पास आउट हो रहे हो, तो कुछ टेक्निक्स होते हैं जो हम जॉब सर्च के लिए अप्लाई करते हैं। कितने टाइप के चैनल्स होते हैं, कहाँ कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, क्या चीज़ें इन्फॉर्मेशन है, कहाँ से क्या मिल सकता है, तो ये सब आपके साथ में मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा। थर्ड इन्फॉर्मेशन विल बी अबाउट कि चलो हमने डिसाइड किया हमें जॉब सर्च करनी है, बट कहाँ से करनी है वो भी हमें पता लग गया कि इतने सारे चैनल्स होते हैं, जॉब पोर्टल होता है, न्यूज़पेपर होता है। अब द थिंग है कि सीवी कैसे बनता है, और क्या सीवी, बायोडाटा, रिज्यूमे, ये तीनों चीज़ें एक हैं या कुछ अलग अलग होता है। विल टॉक अबाउट इट, उसके अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, विल डिस्कस। द फोर्थ विल बी कि कुछ जब सीवी हो गया, आपका सीवी शॉर्टलिस्ट हो गया, आपने अप्लाई किया, अब इंटरव्यू आया, जब इंटरव्यू पे आते हैं तब हमारे से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे आते हैं, और क्यों पूछे जाते हैं, क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या तो ठीक है, व्हाट इज ओके, बट व्हाई, एंड वो व्हाट का आंसर व्हाट में दिया आपने। सो कंटेंट टू कंटेंट नहीं, इट्स अबाउट कि वाई का आंसर आपको हाउ में देना होता है, कैसे आंसर करते हो, उसका एक टेक्निक होता है, उसके कुछ स्टाइल्स होती हैं। आई लाइक टू शेयर विथ यू कि क्या चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो ये 4 मेन एजेंडाज हैं। सो विल स्टार्ट नाउ। आई कैन सी कि बहुत सारे लोग हमारे साथ में जुड़ गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग सब मुझे मतलब लाइव देख पा रहे हैं, मैं आपसे इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ। पीयूष सर भी अभी आए हैं। वेलकम, थैंक यू सर, पीयूष सर, फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर इंफॉर्मेशन विद ऑल ऑफ अस। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, के बाद में लॉकडाउन। लॉकडाउन सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड है, इसका इम्पैक्ट हर जगह है। तो अगर इसका इम्पैक्ट हर जगह है तो हमें कितना इम्पैक्ट होने वाला है। एजुकेशन की फील्ड में है या स्पोर्ट्स कोच हैं तो हमें कितना इम्पैक्ट हो रहा है। और एज एन रिक्रूटर, एज एन एक्सपर्ट फ्रॉम कमिंग फ्रॉम रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री, मेरा क्या ओपिनियन है। ऑल दो फ्यूचर इज अनसर्टेन, किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली कि क्या होने वाला है, कितना एक्सटेंड होगा, बट यस कुछ हिस्टोरिक डेटाज हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है विच आई कैन शेयर विद यू। द फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज कि लॉकडाउन अभी 1.25 महीने के लिए है, एंड काफ़ी हाई पॉसिबिलिटी है दैट इट विल गो फर्दर। फर्दर अगर हटाना भी पड़ता है तो ग्रेजुअली हटेगा। बहुत सारी चीज़ें अलाउड नहीं होंगी, खास तौर पे कम्युनिटी गैदरिंग, सो शादियां अलाउड नहीं होंगी,
बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस हैं जैसे हम लोग भी करते हैं, या फिर बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स करते हैं, उस टाइप की कॉन्फ्रेंसेस अलाउड नहीं होंगी, तो एनीथिंग विच इज़ अवॉइडेबल वो अलाउड नहीं होगा फॉर एटलीस्ट फॉर 3 ईयर 3 मंथ्स, आई कैन सी डाउन द लाइन। स्कूल्स भी इसी टाइप की कम्युनिटी होती हैं, और स्कूल चिल्ड्रन जो हैं दे आर वेरी वल्नरेबल, उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता है, दे आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस, तो स्कूल्स के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क रहेगा कि कितने टाइम बाद अलाउ किए जाएंगे। आई डोंट थिंक कि इमीडिएटली अलाउ होगा, सो इम्पैक्ट आएगा। फिजिकल एजुकेशन एज ए टीचर इफ यू आर वर्किंग इन ए स्कूल, तो उसका इम्पैक्ट टेम्परेरी पीरियड के लिए तो जरूर आएगा, कॉलेजेस में भी आएगा। स्पोर्ट्स कोच हैं, आपके फील्ड में काम करना है, देयर विल बी अ ग्रुप, दे विल कम टुगेदर, दे विल वर्क एज अ टीम, वो भी थोड़े टाइम तक अलाउ नहीं होगा। सो एवरीथिंग इज गोइंग ऑनलाइन। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि सबसे ज़रूरी है आपको इस टाइम में अपने आप को ऑनलाइन अडेप्टेबल बनाना। ये सिर्फ नहीं है, ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप कैसे अपनी रीच इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे आप और डायनेमिक होकर, कैसे आप फील्ड में कराना। आई अंडरस्टैंड कि फील्ड में कराना बड़ा आसान सा काम होता है, या फिर आप उसमें एक्सपर्ट बन गए तो आपको आसान लगता है, बट व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी आपको लगता है डिफिकल्ट है, समझ नहीं आ रहा कैसे करेंगे, नहीं हो पाएगा हमसे। होगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। आप अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प लें, किसी से फ्रेंड पे समझ मतलब कॉल पे समझ सकते हैं, कॉल पे समझें। अदरवाइज बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, वो आपके साथ में स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। तो ऑनलाइन क्लासेस विल बी अ गुड थिंग टू अडेप्ट आई मीन राइट नाउ। आपके स्कूल्स में अगर हो चुकी हैं, आप अडॉप्ट कर चुके हो, वेरी गुड। होने वाली हैं, आप तैयार कर। और अदरवाइज ऑल्सो इफ़ यू आर स्टिल इन स्कूल कॉलेज, और आपको आगे 3 साल बाद जॉब में जाना है, तो आज ही सीख लीजिए। यू नेवर नो अबाउट आई मीन फ्यूचर, सो बेटर बी फ्यूचर रेडी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अ, अब जब इसके अलावा मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा हम सोचते हैं कि फिजिकल, अब मैं कोई स्पोर्ट्स पर्सन था, स्कूल टाइम में स्पोर्ट्स खेला, बहुत अच्छा खेला, स्टेट लेवल खेला, एंड समहाउ देन कोई इंजरी हुआ, कोई और प्रॉब्लम हुआ, एंड देन समहाउ आई हैड टू ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट के बाद अब क्या? क्यों? क्योंकि फॉर्मेटिव ईयर्स अप टिल 10th आई वॉज नॉट एबल टू फोकस ऑन माई एजुकेशन, क्योंकि भाई स्पोर्ट्स में खेल रहे थे। अब स्पोर्ट्स में खेल रहे थे तो वो एजुकेशन वाला पार्ट छूट गया, एजुकेशन गया तो अब एकदम से कैसे स्टार्ट करें, क्या स्टार्ट करें, समझ नहीं आता है। तो आइडिया यही होता है कि भाई हम ऐसा क्यों ना करें कि तो अपने आप को थोड़ा सा फिजिकल एजुकेशन टीचर बन जाए, बीपीएड एमपीएड, इट साउंड सो इजी, बट मेरा पॉइंट ये है कि फिजिकल एजुकेशन बीपीएड एमपीएड के अलावा बहुत सारे कोर्सेज हैं। आप उन कोर्सेज के बारे में रिसर्च करें, स्टडी करें, समझें कि क्या क्या टाइप के ऑप्शंस हैं। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज भी हैं, सीनियर आई मीन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी हैं। फिगर आउट, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट बहुत अच्छी फील्ड है, स्पोर्ट्स मेडिसिन, टेक्निकल फील्ड। सो हमें कोच और फिजिकल एजुकेशन के अलावा भी बहुत बड़ा वर्ल्ड है स्पोर्ट्स का, देखना है। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये सब देखने की ज़रूरत है। ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे मतलब व्हाट्सएप यहाँ पर चैट ऑप्शन में आपको दिखते रहेंगे। हमारी टीम अभी साथ में काम कर रही है, एंड आई एम सो थैंकफुल टू देम। पैफी टीम साथ साथ इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करती रहेगी, किस टाइप के करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कैसे कैसे कोर्सेज होते हैं। बट द पॉइंट इज, look beyond sports coach and teaching job. There is a big world which you need to figure it out. Now, आगे क्या है कि मुझे ये लगता है कि बेसिक इंडस्ट्रीज की तरह ये बात तो जरूर कि एजुकेशन जो है इट्स काइंड ऑफ एसेंशियल सर्विस। एसेंशियल सर्विस होने की वजह से उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ट्राइंग विद ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री, ट्रैवल टूरिज्म कोई ट्रैवल नहीं रहा, जीरो, बट एजुकेशन चलेगी, इट हैज, लॉकडाउन के बाद भी चलेगी, स्लो बेबी स्टेप्स होंगे, बट जरूर चलेगी। सो इट्स अ काइंड ऑफ रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री एजुकेशन, बट don't be overconfident, it will take time to get back to where this was.
आगे चलते हैं। तो अब ऑनलाइन असेसमेंट हम समझे कि हमें कैसे अडेप्ट करना है। सो एक मिस्टर अखंड चौहान मुझसे जानना चाह रहे हैं कि अपने बारे में बताइए। सो थैंक यू बिकॉज आई थिंक दैट यू हैव जॉइन लेट, सो लेट मी रिपीट। सो आई एम अ रिक्रूटमेंट प्रोफेशनल, रिक्रूटमेंट एचआर बैकग्राउंड से हूँ। बहुत सारी कंपनीज में काम किया, 5-6 कंपनीज में काम किया। यूज टू हेड देयर एचआर डिपार्टमेंट, रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट। पिछले 5-6 साल से एंटरप्रेन्योर हूँ, बिजनेसमैन हूँ। एक रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसी रन करता हूँ, एक वेबसाइट रन करता हूँ। Education wise, I have done MBA from IIM Lucknow. So that's a, I mean, topmost institute in our India at least. So यही है, मतलब कॉर्पोरेट में पहले था, फिर एंटरप्रेन्योर हो गया, देन MBA। तो इस टाइप का कुछ मिक्स है, बट द आइडिया इज कि आवर रिक्रूटर थ्रू आउट। सेकेंड थिंग, मूविंग ऑन। सो जॉब सर्च, अब मैं उनसे डिस्कस करना चाहता हूँ। एंड वन मोर थिंग, कि अगर आपको कोई भी क्वेरी फील होती है, कोई भी क्वेश्चन आपको फील होता है, तो यू कैन कीप राइटिंग इन द कमेंट्स। और मेरा आइडिया ये नहीं है कि मैं आपको सिर्फ रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ। आई विल बी टेकिंग क्वेश्चन टूवर्ड्स द लेटर एंड में मैं बात करूंगा क्वेश्चन आंसर्स पे। बट अभी भी मैं आपसे चाहता हूं कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन फील हो रहा है, तो कीप ऑन, आई मीन, राइटिंग। सो दैट, एंड देर इज नो सिली क्वेश्चन इन द वर्ल्ड, माइंड यू, देर कैन बी सिली आंसर्स, बट देर आर नो सिली क्वेश्चंस इन द वर्ल्ड। सो जो आए, जो आपको लगता है कि क्वेरी है, क्वेश्चन है, समझ नहीं आ रहा, इधर आई कैन आंसर, और आर पैफी टीम इज देयर ऑन देयर, I mean, laptops, they will answer, or after this, I mean, live session, I'll also try to answer. But the point is to keep asking, keep, and see one more thing. I'm not the only expert here in this world. There are so many expert in this world. If you know something which can help other, I mean, person who is asking the question, please answer them right there. It's a collaborative effort. I'm not perfect. If you in your field know better, please answer. Now, the first thing is about the job search technique. किस टाइप के जॉब सर्च की टेक्निक्स होती हैं, हम कैसे जॉब हमको मिल सकती है। तो सिर्फ फ्रेशर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। फ्रेशर तो ठीक है, भाई अभी BPEd किया, MPEd किया, या कोई और कोर्स किया, अब जॉब मार्केट में जाना है। फर्स्ट टाइम जॉब सीकर, वो भी है। बट आप यू आर एक्सपीरियंस पर्सन, आप कहीं पर ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, ऑलरेडी जॉब करते करते आपको फील होता है कि अच्छा, अब जॉब चेंज करनी पड़ेगी। अब कोई भी XYZ, मतलब रीज़न हो सकता है, आप खुद जॉब करना चाहते हो, या स्कूल आपसे जॉब चेंज करवाना चाह रहा है, लॉकडाउन है। सो देर विल बी डिफरेंट सिनारियोज। आपको रेडी रहना है कि कैसे जॉब सर्च के इवेंचुअल डिसीजन पे आपको काम करना है, क्या चीज़ कर सकते हो, आप कैसे कर सकते हो। सो द फर्स्ट थिंग इज, जो मैंने देखा है कि फिजिकल एजुकेशन फील्ड में सबसे ज़्यादा यही होता है कि रेफरेंस पे हम लोग मतलब रिलाई करते हैं। सबको ऐसा लगता है कि बस रेफरेंस जो है वही जॉब दिला सकता है। आप 10 फ्रेंड्स को फ़ोन करोगे और बोलोगे कि यार मैं जॉब देख रहा हूँ, मेरे लिए कोई जॉब देखो। और अगर सामने वाले के पास है, दो चीज़ें हैं, एक तो उसके स्कूल में या फिर उसके नेटवर्क में है, दूसरा अगर उसके पास डिसीजन मेकिंग कोई पावर है, कुछ कर सकता है, कोई कंट्रोल है स्कूल के अंदर, तभी इन दो सिनारियो एक साथ होने पर वो आपको हेल्प कर पाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम जॉब नहीं होती है, सेकेंड टाइम जॉब होती है तो उसके पास कंट्रोल नहीं होता, सिर्फ CV फॉरवर्ड कर सकता है मैक्सिमम। एंड देन टू देर आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, किसी को आपका CV पसंद आता है, किसी को नहीं आता, वो बंदा पसंद नहीं होता डिसीजन मेकर को, तो इशू है। तो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हैं। सो द पॉइंट इज कि रेफरेंसेस पे 100% रिलाई नहीं करना चाहिए। रेफरेंसेस के सहारे अपनी किस्मत नहीं छोड़नी चाहिए कि रेफरेंसेस मुझे निकाल देंगे, नहीं नहीं, देर आर डिफरेंट थिंग्स एज वेल विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। अनदर थिंग जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है न्यूज़पेपर की ऐड। न्यूज़पेपर में ऐड, को लगता है कि ठीक है भाई, न्यूज़पेपर से हमने अप्लाई कर लिया और यहाँ से मतलब बात बन जाएगी, और इसके बियॉन्ड कहीं सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। या तो रेफरेंस 10 फ्रेंड्स को फ़ोन किया वहाँ से, अदरवाइज डेली का मतलब न्यूज़पेपर देखिए, वहाँ से आपको जॉब मिल जाएगी। नहीं, ऐसा मतलब नहीं है, और भी चीज़ें हैं। क्या चीज़ें हैं, बट तो उसमें देखते हैं और क्या चीज़ें हैं। तो पहली चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना है, जॉब पोर्टल।
आई नो मोस्ट ऑफ यू आर ऑलरेडी अवेयर कि भाई जॉब पोर्टल्स तो हमको भी पता है, Naukri.com हर कोई जानता है, बट आपके सीवी क्यों नहीं होते फिर? एज अ रिक्रूटर आई हैव बीन यूजिंग दिस Naukri.com for last 17 years. 55,000 interviews I have done myself, telephonic, face to face. बट मैं तो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स टीचर्स, कोचेस, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के सीवीज नहीं देखता। क्यों नहीं होते आपको पता है? सो द पॉइंट इज कि जॉब पोर्टल्स को यूज़ करना बहुत 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 ज़रूरी है। आपको 100%, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, आपको जॉब पोर्टल्स पे अपना सीवी डालना ही चाहिए। सिर्फ एक Naukri.com जॉब पोर्टल नहीं है, उसके अलावा बहुत सारे जॉब पोर्टल्स हैं। कुछ मैं आपको बताता हूँ। टाइम्स जॉब है, शाइन है, मॉन्स्टर इंडिया है, लिंक्डइन है, आई एम जॉब्स करके है, हायरिस्ट है, अपडेट्स है, इश्तिहार है, वर्क इन इंडिया है। देर आर एटलीस्ट 28 जॉब पोर्टल्स विच वी यूज़। आप एक तो सीवी डालोगे नहीं, डालोगे तो Naukri.com पे डालोगे, उसके बियॉन्ड आपको देखना नहीं, देखना चाहिए। जस्ट गूगल इट, एक क्लिक पे आपको सारे जॉब पोर्टल्स की लिस्ट आ जाएगी। सीवी एक बार बन गया, अपलोड करने में कितना टाइम लगता है? जस्ट अ मैटर ऑफ 5-10 मिनट्स। अपलोड करिए, मैक्सिमाइज योर चांसेस। रिमेंबर, जितने ज़्यादा जगह आप सीवी अपलोड करेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जॉब पोर्टल्स पे, उतना आपको हेल्प करेगा। इसी जॉब पोर्टल की लिस्ट में एक वेबसाइट है linkedin.com। linkedin.com, if you are aware, very good. If you are not, then listen carefully. linkedin.com जो है एक सोशल सोशल नेटवर्किंग साइट, यू नो, आई मीन ये फेसबुक हो गया हमारा, ट्विटर हो गया, ये सोशल नेटवर्किंग होती है। व्हाट्सएप से सोशल नेटवर्किंग होती है, ग्रुप्स होते हैं। प्रोफेशनल नेटवर्किंग एक चीज़ होती है, प्रोफेशनल्स की नेटवर्किंग। linkedin.com इज़ अ प्रोफेशनल नेटवर्किंग जॉब साइट। इसमें क्या होता है? प्रोफेशनल नेटवर्किंग करते वक्त आपको वहाँ पर आपको सारे कंपनीज के, स्कूल्स के सीनियर लीडरशिप एंड एचआर रिक्रूटर वाले, आई मीन एचआर रिक्रूटर्स, इन सब के प्रोफाइल्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वहाँ पर कौन है जो कि डिसीजन मेकर है, सीएक्सओज कौन है, प्रिंसिपल्स कौन है, एचआर्स कौन है, क्या फॉर्मेट है, कॉर्पोरेट्स के लिए भी ट्रू है। तो अगर सब लोग वहाँ पर हैं और यू कैन नो देम, यू कैन कनेक्ट विद देम, सो यू शुड बी ऑल्सो देयर। कोई कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आपको भी वहाँ पर पहुँचना चाहिए। सो linkedin.com, that's a good, I mean, good way. There are very specific job portals as well. I don't know if you are aware. Sportsnaukri.com, that's a specific niche job portal for sports field. There are other agencies which keep on hiring, I mean, people from the physical education background, Fitness 365, Cult. There are so many companies, corporate, organized setup which are into this space. Figure them out, apply directly there. linkedin.com पे तो आपने सीवी डाल के छोड़ देना है। रिक्रूटर वहाँ से लॉग इन करेगा, आपका सीवी सर्च करेगा, मिलेगा तो आपको मतलब कॉल करेगा। बट कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बल्क में हायर करते हैं, जिनके पास एम्प्लॉयज़ बहुत सारे हैं, वहाँ पर उनकी वेबसाइट पे जाके उनके करियर सेक्शन में आपको सीवी अपलोड करना होता है। वो भी करना जरूरी। स्कूल्स में आप शायद करते होंगे, आई एम श्योर, बट मैं कह रहा हूँ कि ऐसे कुछ ऑर्गेनाइज सेटअप्स हैं जहाँ आपको अप्लाई करना होता है। अच्छा, एक चीज़ और, मैं सरकारी जॉब्स के बारे में बात नहीं करना चाहूँगा, मेरा सारा एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट से है। सरकारी तंत्र जो है बहुत ही अलग टाइप का है, और उसके अपने सेट प्रोटोकॉल्स हैं, सेट गाइडलाइंस हैं। इसमें ना मैं कुछ कर सकता हूँ, एंड आई आई थिंक कि आप बहुत ज़्यादा उसके अंदर चेंज करने की, मैन्यूवर करने की पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, दैट विल बी आउट ऑफ द स्कोप ऑफ माय एक्सपर्टीज। सो दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। नाउ कमिंग फॉरवर्ड, अब एक चीज़ मैंने आपको कही कि प्रोफेशनल नेटवर्किंग एक चीज़ होती है। अब मैं आपसे नेटवर्किंग के बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ। नेटवर्किंग क्या होती है? मैंने देखा है कि बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि नेटवर्किंग का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस में जाओ, वहाँ पर 20 लोगों से मिलो और 20 लोगों से अपना कार्ड एक्सचेंज करके आ जाओ, नेटवर्किंग हो गई। अदरवाइज
अपने इंडस्ट्री, अपने स्पेसिफिक डोमेन के लोगों के साथ में व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। देर विल बी 256 मेंबर देयर, और आप प्रोफेशनल नेटवर्किंग कर रहे हो। आप कभी कभी गुड मॉर्निंग भेज रहे हो, कभी आप गुड कह रहे हो, ये बहुत अच्छा मैसेज आया, वेरी गुड। दिस इज नॉट नेटवर्किंग, दिस इज सोशल नेटवर्किंग। प्रोफेशनल नेटवर्किंग अलग होती है। कैसे होती, क्या होती है? देखिए, प्रोफेशनल नेटवर्किंग का सबसे पहला रूल है कि आपको सामने वाले की हेल्प करनी है। ऑलवेज बिकम गिवर, देन यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न। आपको हमेशा कुछ देना है, कुछ करना है सामने वाले के लिए। जब आप करोगे, आपका बैलेंस प्लस होता जाएगा। सबके साथ में 1 to 1 अकाउंट चल रहा है, आप कुछ करे जा रहे हो उनके लिए, कोई ऑब्लिगेशन आपने किया, उनको एहसान लगा, उनको फील हुआ कि हाँ इन्होंने हमारे लिए कुछ किया, देन इन फ्यूचर, कभी फ्यूचर में वो आप रिकवर कर सकते हो। और मैं आपको बताऊं कि आपको मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग आपके साथ खुद जुड़ेंगे, लोग आपके साथ में खुद आपको हेल्प करना चाहेंगे। बस उन्हें सिचुएशन पता होनी चाहिए, वो आएंगे आपके साथ में। तो प्रोफेशनल नेटवर्किंग इज ऑल अबाउट गिविंग। ऐसा नहीं है कि आपने फ़ोन उठाया और अपने फ्रेंड को बोला यार जॉब मुझे चाहिए, कहीं जॉब ढूंढ दे। नो, इट्स नॉट दैट वे। हमेशा उनके साथ में टच में रहना है, रिलेशनशिप मेंटेन करनी है, बिल्ड करनी है, और हमेशा कोशिश करनी है। इफ़ यू आर इन पावर टुडे, आप किसी स्कूल में, कहीं भी, किसी भी जॉब में है, एंड आपके पास कोई पावर है, आप किसी को हेल्प कर सकते हैं, आज करिए। आज अपना बैलेंस के अपने अकाउंट में बैलेंस पॉजिटिव करते चलिए। जितना ज़्यादा पॉजिटिव बैलेंस होएगा, यू विल बी एबल टू रिकवर दैट बैलेंस, एंड इवन आपको मांगना नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, नेटवर्किंग इज अबाउट गिविंग, नॉट आस्किंग। सेकेंड इज कि जब भी आप किसी प्रोफेशनल इवेंट में, नेटवर्किंग इवेंट में जाते, कॉन्फ्रेंस में गए आप, आपने 20 लोगों से मिला, हाय हेलो हुई, मैंने, सब लोग कार्ड एक्सचेंज करते हैं, आपने दिया, सामने वाले ने दिया। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग कार्ड एक्सचेंज करके ना घर पे लाके वो कार्ड्स को रख देते हैं, एंड वी थिंक कि हद से हद हो सकता है कि 10 लोग ऐसे होते होंगे जो वो नंबर को फीड कर लेते होंगे, वो भी सिलेक्टिव नंबर्स को, जो उनको 2-4 लोग बड़े बड़े टाइप के मतलब मिले होंगे, तो दे फील लाइक कि मैं इनको जान गया, आज मिल के आया तो इनका नंबर अपने पास रख लेता हूँ। इट्स लाइक कि पीएम मोदी को अगर मैं जानता हूँ तो बहुत नहीं, पीएम मोदी को आपको जानना बहुत बड़ी चीज़ है। आप कैसे उनको, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाओगे? आज मिले, जैसे आप मिले वैसे अगर कोई बड़ी पर्सनैलिटी है तो उनके साथ में 100 लोग और मिले होंगे, आप कैसे ध्यान रहोगे? तो मेरा पॉइंट ये है कि आप अगर कहीं भी किसी से मिलते हो तो उनसे फॉलो अप डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। कॉन्फ्रेंस में मिल के आए, इन नेक्स्ट 3 to 5 डेज के अंदर आपको एक बार उनसे कॉल करना है। अगर आप चाहते हो कि ये रेलेवेंट पर्सन है मेरी फील्ड के लिए, एक कॉल बस, ज़्यादा कुछ नहीं। इफ़ पॉसिबल, अगर आपके एरिया मतलब आपकी लोकेशन में है तो उनसे एक बार मिल के आइए। सो नेक्स्ट 15 डेज के अंदर आपको फर्स्ट 3 डेज एक कॉल, फर्स्ट 15 डेज के अंदर एक पर्सनल मीटिंग करनी है। फ़ोन करते वक्त ही आप पूछ सकते हैं कि आप उनके ऑफिस में कब जा सकते हैं, वो आपके ऑफिस में कब आ सकते हैं, या फिर कहीं भी कॉफ़ी हाउस, सीसीडी, बारिस्ताज वगैरह, कहीं भी बाहर कहीं आप उनसे मिल सकते हैं, अगर आपके इंटरेस्ट के पर्सन आपको फील होते हैं। बड़े लोगों के पास टाइम नहीं होगा, बट आई एम टॉकिंग अबाउट कि जहाँ आप चाहते हैं कि कुछ एक्सचेंज हो सकता है, गिव एंड टेक कुछ हो सकता है, विन विन क्रिएट कर सकते हो। कभी भी ज़ीरो सम गेम नहीं होता। इट्स नॉट कि मेरा ही फ़ायदा हो, सामने वाला को कोई फ़ायदा नहीं होगा, नहीं होता ऐसा। हमेशा विन विन होता है। विन किसी की छोटी, किसी की बड़ी चलती है, बट किसी की एब्सोल्यूट 100 विन और किसी की ज़ीरो, ऐसी रिलेशनशिप डिफ़िकल्ट होती हैं। क्रिएट विन, इवन इफ इट इज़ स्मॉल, बट क्रिएट विन। उनके सामने वाले के लिए एडवांटेज होना चाहिए। सो एक्सचेंज, क्रिएट समथिंग। ओके, so now I think my voice is not louder, so I'm trying to, I'll try to talk higher. तो पहली चीज हमने बात कर ली कि जॉब सर्च टेक्निक्स किस टाइप की हैं,
के बारे में मैंने आपको बताया कि रेफरेंसेस और न्यूज़पेपर के बियॉन्ड जाइए, जॉब पोर्टल्स में जाइए, नेटवर्किंग जाइए, लिंक्डइन समझिए, और रियल नेटवर्किंग क्या होती है उसके बारे में जानिए। तो ये हमारा सेक्शन जो है यहीं पर ख़त्म होता है। मैं आगे जाके आपसे बात करना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट इस कि सीवी कैसे बनाना है। चलो मैंने अप्लाई कर दिया, मेरे फ्रेंड ने बताया, मुझे जॉब साइट से कुछ अंदाज़ा लगा। अब नाउ द प्रॉब्लम विल कम कि सीवी कैसे बनाएं। अब हर कोई सबसे पहले आपसे यही बोलेगा कि सीवी भेज दूँ, देखता हूँ, सेंड मी योर सीवी। एचआर मेरे कॉल करोगे तो सेंड मी योर सीवी बडी, आई सी एंड देन आई रिवर्ट टू यू। बट द प्रॉब्लम है कि सीवी क्या होता है, कैसा होता है। और कोई इसको सीवी बोल देता है, कोई इसको बायोडाटा बोल देता है, कोई इसको रिज्यूमे बोल देता है। ये क्या तीनों चीज़ें अलग हैं या फिर तीनों चीज़ें सेम है? सीवी, रिज्यूमे, बायोडाटा, कन्फ्यूज़न होती है। डिफरेंस आपको समझाता हूँ। बायोडाटा जो है प्रोफेशनली ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि आपका, ये आर्मी से टर्म आया है। आर्मी में जब रिक्रूटमेंट हुआ करती थी तो वहाँ पर पूछा जाता था कि आपका बायो का डेटा चाहिए उनको। बायो क्या? हाइट, वेट, एटसेट्रा। तो बायोडाटा टर्म जो है वहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। नाउ सेकेंड थिंग इज कि अगर बायोडाटा वहाँ से ओरिजिनेट है जिसमें बेसिकली फ्यू डेटा पॉइंट्स मांगे जा रहे हैं, तो सीवी क्या है, रिज्यूमे क्या है? सीवी जो है इट्स अ करिकुलम विटे। करिकुलम विटे जो है एजुकेशन फील्ड में ज़्यादा यूज होता है और बहुत डिटेल्ड होता है। जनरली सीवी कैन गो अप टू 15 पेजेस, 15 पेजेस के सीवी होते हैं। इट्स ओके बिकॉज रिसर्च में, एजुकेशन में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वही इनको ज़रूरत होती है, बट नॉट एवरीवेयर। रिज्यूमे क्या होता है? रिज्यूमे इसके बीच का होता है। बायोडाटा जो है 1 पेजर होगा जनरली। कुछ डेटा पॉइंट्स होते हैं, एजुकेशन, हाइट, वेट, पर्सनल, डेट ऑफ बर्थ टाइप से डेटा पॉइंट्स होते हैं। पॉइंट्स, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट। सेकेंड थिंग है करिकुलम विटे। 15 पेजेस भी हो सकते हैं, 10 पेजेस भी हो सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ किया, कैसे किया, उसका इम्पैक्ट क्या, रिसर्च का ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है। रिज्यूमे बीच का होता है, आइडियली 3 पेज का होना चाहिए। 2 पेज का भी ठीक है, 1 पेज का भी ठीक है, 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये बात आप मतलब समझ लीजिए। बायोडाटा आइडियली 1 पेज का होता है, सीवी 15 पेज का होता है, रिज्यूमे 2 और 3 पेजेस का होता है। चलिए बात समझ में आती है। सीवी, रिज्यूमे, बायोडाटा, फ़र्क क्या हुआ? आ गया समझ में? अब क्वेश्चन ये आता है कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सीवी के अंदर, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन मतलब डिस्कस करना चाह रहा हूँ, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। आप ये वाला सीवी जो है इसको देखिए, सीवी लिखा हुआ है ऊपर, बट ये सीवी नहीं है, बायोडाटा है, विच इज़ ओके। अब बायोडाटा में एक क्वेश्चन आता है कि फोटोग्राफ हमें इस्तेमाल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि अनटिल अनलेस आपकी जॉब स्पेसिफिकली डिमांड करती है कि आप प्रेजेंटेबल होने चाहिए, आपके लुक्स मैटर करते हैं। फॉर एग्जांपल रिसेप्शनिस्ट की जॉब होती है फ्रंट ऑफिस की, वहाँ पर लुक्स शायद मैटर करते हैं क्योंकि आप फर्स्ट इम्प्रेशन हो उस जगह में, तो लुक्स मैटर करते हैं। एयर होस्टेस की जॉब होती है, वहाँ लुक्स मैटर करते हैं, वहाँ पर आपको फोटोग्राफ लगाना है। अदरवाइज नहीं लगाना होता, कहीं नहीं लगाना आपको फोटोग्राफ, अनटिल स्पेसिफिकली आपसे मांगा गया हो, विच इज़ ओके। अगर मांगा गया है तो ऑब्वियसली आपको देना पड़ेगा, बट अपने आप से नहीं शेयर करना। क्यों नहीं शेयर करना चाहिए? क्योंकि फोटोग्राफ देख कर ना आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस कम होते हैं एज कंपेयर टू रिजेक्ट होने के चांसेस। सो माय पॉइंट इज कि हम सब लोगों के पास में अपने अपने अलग अलग बायस होते हैं। किसी को ऐसी शक्ल पसंद नहीं, किसी को ऐसी आंखें पसंद नहीं, किसी को ऐसे बाल पसंद नहीं। ये कैसे बाल हो गए? ये बंदा काम कर नहीं है, ही इज नॉट प्रोफेशनल। सो हमारे बायसनेस की, रिक्रूटर अपने बायसनेस की वजह से आपका सीवी रिजेक्ट कर सकते हैं। फोटोग्राफ मत शेयर करिए, नॉट रिक्वायर्ड, कोई ज़रूरत नहीं है फोटोग्राफ शेयर नहीं करनी। सेकंड पॉइंट आता है कि करियर ऑब्जेक्टिव।
शेयर करना है कि नहीं करना, ये फर्स्ट लाइन जो आप सब लोग लिखते हो, इफ गिवन अ चांस, गिवन अ अपॉर्चुनिटी, आई विल प्रूव माई सेल्फ विद बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज, देयर बाय लर्निंग एंड ग्रोइंग, ये सब कॉपी पेस्ट करते हैं। एज अ रिक्रूटर मेरा दिन रात का काम है, मैं एक दिन में 100, 150, 200 सीवीज देखता हूँ, सबके कॉपी पेस्ट इन्फॉर्मेशन आते हैं। मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, कोई बेनिफिट नहीं आ रहा, कोई वैल्यू एड नहीं हुआ कि आपने ये इन्फॉर्मेशन कहीं से कॉपी पेस्ट कर दी। आपने अपने सीवी का वैल्यूएबल स्पेस खराब कर दिया, वेस्ट कर दिया। कोई नहीं पढ़ता, मुझे क्यों पढ़ना, आपने कॉपी पेस्ट करते किया है, सब लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। सो ये तो हर जगह होता है। सो ऑब्जेक्टिव जेनरिक वाला अवॉइड करना है, नहीं लिखना। इफ गिवन एन अपॉर्चुनिटी आई विल प्रूव माई सेल्फ, नॉट रिक्वायर्ड, वी अंडरस्टैंड, कॉपी पेस्ट है, हम भी यही करते थे। नहीं चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। सीवी का फॉर्मेट किस टाइप का होना चाहिए? तो सीवी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? तो करियर ऑब्जेक्टिव की जगह पर आपको रिप्लेस करना चाहिए प्रोफेशनल समरी से। प्रोफेशनल समरी जो है टॉप में आएगी, आपका नाम, नाम के साथ में कॉन्टैक्ट डिटेल्स सिर्फ दो, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस नहीं डालिए, एड्रेस एंड में डालते हैं। और उसके बाद में आपको डालना है प्रोफेशनल समरी। प्रोफेशनल समरी 5 बुलेट पॉइंट्स होते हैं। मैक्सिमम एक बुलेट पॉइंट 2 लाइंस में जा सकता है, थर्ड लाइन पे नहीं जाएगा। सो 5 बुलेट पॉइंट्स क्या बता रहे होते हैं? आपका ओवरऑल प्रोफाइल कैप्चर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप एजुकेशन के बारे में एक बुलेट पॉइंट डाल सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस के बारे में डाल सकते हैं, अपनी कोई स्पेशलिटी है तो उसके बारे में डाल सकते हैं, स्पोर्ट्स में कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट है उसके बारे में डाल सकते हैं, बट 5 बुलेट पॉइंट, दैट्स इट। प्रोफेशनल समरी सबसे पहला सेक्शन किसकी जगह पर आया था? करियर ऑब्जेक्टिव की जगह पर। ठीक है जी, हमने 5 बुलेट पॉइंट बना लिए। अब इसके बाद में क्या डालना है? अब देखिए, कुछ लोग एक्सपीरियंस पहले लिखते हैं, कुछ लोग डिग्रीज पहले लिखते हैं, कुछ लोग अपनी पर्सनल डिटेल्स लिख देते हैं, कुछ अचीवमेंट लिख देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लिख देते हैं, बट इसका एक सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस कैसा होना चाहिए? अब डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के हो। ये क्वेश्चन सीक्वेंस वाला इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका खुद का अभी कितना एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर फ्रेशर, फ्रेशर में, अच्छा इससे पहले मैं आपको एक चीज़ कहूँ कि जब भी आप सीवी बना रहे हो तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यूएसपी क्रिएट करनी होती है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। इसका बेसिकली मतलब सिर्फ यही है कि आपको ये देखना है कि मेरे में क्या यूनिक है, मैं कैसे इसको बेच सकता हूँ, क्या मैं डिफरेंट अपने सीवी में दिखा सकता हूँ, कैसे मैं भीड़ से अलग इमर्ज हो सकता हूँ। आपको ये ध्यान रखना है, यूएसपी। गूगल करिएगा अगर ये चीज़ समझ नहीं आई तो आपका हर जगह ये ध्यान रखना है कि आप कैसे इसको डिफरेंशिएट करें। यूएसपी पे आते हैं तो आपको ये देखना है कि मेरा सबसे बड़ा स्ट्रांग पॉइंट क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मैं नेशनल खेला हूँ, इंटरनेशनल खेला हूँ, तो मेंशन दैट। अगर आप फिजिकल एजुकेशन की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मेंशन करना चाहिए, ये आपकी यूएसपी है, यही आपका यूनिक पॉइंट है, ये आपको डिफरेंशिएट करेगा भीड़ में से, करना चाहिए। इसी यूएसपी वाली चीज़ को अगर आप मतलब समझ रहे हैं तो आप ये भी जानेंगे कि मुझे फिर एक्सपीरियंस भी कुछ यूनिक हो सकता है जो और किसी के पास नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने किसी बहुत अच्छे स्कूल में जॉब करी है, रेपुटेड, तो उस एक्सपीरियंस को आप मेंशन करना चाहेंगे सबसे पहले, तो एजुकेशन सबसे पहले आएगा, वहाँ स्पोर्ट्स अचीवमेंट आ रही थी। द पॉइंट इज कि सीक्वेंसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विल डिपेंड अपॉन कि आपका यूएसपी क्या है। बट कुछ फील्ड जरूर आते हैं। प्रोफेशनल समरी वी हैव ऑलरेडी स्पोक 5 पॉइंट्स वाला। उसके बाद में एक्सपीरियंस ज़रूर आएगा, आपका एजुकेशन ज़रूर आएगा, आपकी डिग्रीज, आपके सर्टिफिकेट ज़रूर आएंगे, आपकी अचीवमेंट ज़रूर आएंगी। अचीवमेंट स्पोर्ट्स में भी हो सकती हैं, अदरवाइज एजुकेशन एकेडमिक साइड की भी हो सकती हैं। आपकी पर्सनल डिटेल्स ज़रूर आएंगी कि आपकी पर्सनल डिटेल्स अगर आप उसके साथ में शेयर करना चाह रहे हो। आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अगर आप चाहो तो डालिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ रेलेवेंट टू द जॉब, रैंडम कुछ भी नहीं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। ऑलवेज थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एचआर रिक्रूटर, उसके लिए कोई रेलेवेंसी बैटरी है इसकी, क्यों बता रहा हूँ मैं इसको, क्या ज़रूरत है? सो आई थिंक सीवी वाली बात आपको अभी कुछ काफ़ी हद तक आई होगी समझ में। एक और चीज़ होती है कवर लेटर। बहुत सारे लोग बोलते हैं कवर लेटर क्या है, कवर लेटर समझ नहीं आ रहा, कवर लेटर क्यों बनाना है, कैसे बनाना है? अगर आपको ईमेल करने के लिए कहा गया है
तो कवर लेटर अलग से नहीं होता है। मेल की जो बॉडी होती है, जहाँ पर आप मेल लिख रहे हो कि डियर सर प्लीज फाइंड अटैच माय सीवी, यही कवर लेटर का स्पेस होता है, अलग से अटैचमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको कुछ कुछ अपने हाईलाइट, जैसे वो प्रोफेशनल समरी 5 पॉइंट्स की बनाई थी ना, फ्यू थिंक, आप उस टाइप की कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाल सकते हो, शॉर्ट एंड स्वीट, कम टाइम ले पढ़ने वाले को और आपकी पूरी प्रोफाइल समझ में आ जाए। ठीक है, कवर लेटर वाली बात समझ में आई। कवर लेटर जितना छोटा होगा उतना अच्छा, जितने बुलेट पॉइंट्स में होगा उतना अच्छा। इंग्लिश नहीं, इंग्लिश का ऐसे राइटिंग कंपटीशन नहीं है कि इतने बड़े बड़े पैराग्राफ होने चाहिए ना, छोटा, बुलेटेड, स्मॉल, 5 7 बुलेट पॉइंट, दैट्स इट। चलो ठीक है, हमें सीवीबी मतलब बात समझ में आया है। तो अभी तक हमने क्या क्या बातें कर ली, जॉब सर्च की टेक्निक, किस किस टाइप के ऑप्शंस होते हैं, कहाँ कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, हमने ये देख लिया कि भाई सीवी अगर हमें प्रिपेयर करना है तो किस टाइप से हम सीवी को प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती हैं, डिफरेंस समझा, कुछ और अगर क्वेरीज थी वो समझी। कवर लेटर के मैंने आपको एक सीवी दिखाया था जो कि मैं एग्जांपल लेके आपको समझा रहा था, दैट वाज नॉट अ गुड सीवी। अब मैं आपको अपना सीवी दिखाता हूँ, मुझे और कोई सीवी अब मिल नहीं पाया, घर पे हूँ तो अपना ही सीवी दिखाता हूँ। आप इस सीवी को ध्यान से देखिए। इसके अंदर सबसे पहले नाम, नंबर, इंफॉर्मेशन, प्रोफेशनल समरी, उसके बाद एजुकेशन, उसके बाद एक्सपीरियंस स्टार्ट हो गया। सेकंड पेज इसका जा रहा है, एक्सपीरियंस की बात हो रही है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात हो रही है, टेक्निकल नॉलेज की बात हो रही है, और पर्सनल डिटेल्स की बात हो रही है। 2 से 3 पेज, प्रोफेशनल समरी और सब फील्ड, सब सेगमेंटेड, सब स्पेसिफाई। याद करिए पुराना वाला, ये सीवी था, एक मैंने अभी अपना सीवी शेयर किया, तो एग्जाम्पल के लिए आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है जी, सीवी वाली बात हमको समझ में आई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझना चाह रहे हैं कि चलो मैंने सीवी से अप्लाई किया, मुझे कॉल भी आ गई, मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लिया। इंटरव्यू के लिए जब बुला लिया तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्या आंसर करना होता है। एट टाइम्स बात ही समझ नहीं आती कि क्या करें क्या ना करें। बट बात समझने से पहले सबसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो मैं देखता हूँ वो है लैंग्वेज बैरियर। मैं बहुत बार देखता हूँ कि हमारे जो फिज़िकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स से मतलब रिलेटेड लोग हैं, वो इंग्लिश के मामले में थोड़ा पीछे रह जाते हैं, थोड़ा फील करते हैं कि नहीं यार इंग्लिश प्रॉब्लम है। अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में आप जॉब करना चाह रहे हो, आप चाहते हो कि आपको एट पार विद अदर टीचर्स ट्रीट किया जाए, बट वो अदर टीचर्स जो है ना वो सब इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं बच्चों से, और आप कहीं ना कहीं इंग्लिश में फ्लुएंटली बात नहीं कर पाते। आपका इम्प्रेशन मैनेजमेंट प्रिंसिपल वगैरह की नज़र में यहीं से चेंज होना शुरू हो जाता है कि आप स्पोर्ट्स वाले थोड़े अलग हैं, टीचर्स एजुकेशन मैथ्स इंग्लिश वाले थोड़े अलग हैं। क्यों? लैंग्वेज एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। इंग्लिश के ऊपर काम करिए, बहुत करिए, जस्ट अ लैंग्वेज, कोई बड़ी बात नहीं है। ज़िंदगी भर हैंडीकैप रहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझसे इंग्लिश नहीं होगी, हो जाएगी, आसान है। जस्ट एफर्ट लगते हैं। आप स्पोर्ट्स में अपने अपने फील्ड्स में इतने एफर्ट करें, सुबह 4 बजे ट्रेनिंग करते थे, ट्रेनिंग करने से ही तो होता था ना, प्रैक्टिस करने से ही तो बात बनती थी। इंग्लिश का भी ऐसे ही, लैंग्वेज का, किसी भी लैंग्वेज का ऐसा ही है, प्रैक्टिस करने से ही बात बनती है। कैसे कैसे इंग्लिश की मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उसके बारे में सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आजकल इंटरनेट, स्मार्टफोन सबके पास हैं, तो बड़ा आसान होता है, डिक्शनरी की किसी को ज़रूरत नहीं है। कोई भी वर्ड नया सुनते हैं उसको हमने लिखा गूगल पे, उसका आंसर मिल जाएगा कि इसका आंसर क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है उसका, प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन होता है। एनीवे, द पॉइंट इज़ कि अपने स्मार्टफोन्स की हेल्प लीजिए। कुछ ऐप्स भी आती हैं, उनको डाउनलोड कर लीजिए। ऐप्स बहुत सारी हैं जो आपको हेल्प करेंगी। एक स्पेसिफिक ऐप है गूगल ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेट जो है आपका वॉइस कमांड भी लेता है, वॉइस टू टेक्स्ट वो अपने आप कन्वर्ट कर लेगा और उसको कन्वर्ट करके इंग्लिश में शो कर देगा। फॉर एग्जांपल, आप डेली प्रिंसिपल से या किसी बच्चों को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, आप हिंदी में देते हैं, उसमें बोलिए, वो आपको कन्वर्ट करके दिखाएगा। उस पर एक स्पीकर टाइप का बटन होता है, उसको दबाइए, वो आपको बोल के इंग्लिश में भी सुनाएगा, आपको प्रोनाउंसिएशन भी समझ में आएगा। गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल करिए। टेक्नोलॉजी आपके पास, सबके पास फ़ोन है, बड़ा आसान है।
कुछ बुक्स हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। एक तो सबसे अच्छी बुक जो मुझे लगती है वो ये है, वर्ड पावर मेड इजी। नॉर्मन लुइस की है, बहुत अच्छी बुक है, बहुत सस्ती भी है, 150-200 रुपए की आती है। तो ज़्यादा महंगी नहीं है। आपको इसको अपनी वोकेबलरी इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जॉब के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ तो एक दूसरी बुक है जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, ये यू आर हायर्ड, नाशा फिटर की बुक है। ये भी एक अच्छी बुक है, आपकी वोकेबलरी, आपका सेंटेंस फॉर्मेशन वगैरह अच्छा इंप्रूव कर देगा। बट हम में से मोस्ट ऑफ लोग को वोकेबलरी का इशू नहीं है, राइटिंग का इशू नहीं है, प्रॉब्लम इज वाइल स्पीकिंग। वहाँ कॉन्फिडेंस नहीं आता, वहाँ बात नहीं बनती। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए आपको इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन ही करना पड़ेगा। सुनिए, जितना ज़्यादा सुन सकते हैं। इंग्लिश मूवीज़ देखिए, हॉलीवुड में बहुत अच्छी मूवीज़ बनती हैं। आपको डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव उसके अंदर मिलेगा। आपको समझ में आया है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें लर्न कर सकते हो आप जब सही करेक्टली सुनोगे, सही करेक्टली बोल पाओगे। आपको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में समझ में आएगा कि कैरेक्टर्स कैसे बात कर रहे हैं। जैसे वो बात कर रहे हैं वैसे आप भी बात कर पाओगे। तो जितना ज़्यादा पॉसिबल हो इंग्लिश वाला कंटेंट, वीडियो, ऑडियो कंज्यूम कीजिए। मूवीज़ देखिए, फ़ोन पे देखिए। आपको सीरीज़ अच्छी लगती हैं तो बहुत सारी सीरीज़ भी हैं, सीरियल टाइप की सीरीज़ होती हैं। मैंने जब शुरू किया था तो मैंने फ्रेंड्स मुझे बहुत पसंद था, तो उस टाइप के आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो भी आपको इंग्लिश बेस्ड सीरीज़ अच्छी लगती है वो देखिए। न्यूज़ जो है वो हिंदी चैनल्स को छोड़िए, इंग्लिश चैनल सुनिए। इंग्लिश चैनल सुनेंगे तो आपको अपने आसपास जो हो रहा है वो इंग्लिश में समझ में आएगा। इंग्लिश में समझ में आएगा तो आप इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कर पाओगे। बहुत ज़रूरी है। जितना आप ज़्यादा इंग्लिश सुनोगे उतना ज़्यादा आप बोल पाओगे। उसके बाद प्रैक्टिस करिए, किसी के साथ भी प्रैक्टिस करिए, फ़ोन पे करिए। मतलब आजकल तो आप देख ही रहे हैं कि ग्रुप कॉलिंग कितना इजी है। 4-5 अच्छे फ्रेंड्स मिलकर कभी भी टाइम मिलता है, ग्रुप कॉल किया, व्हाट्सएप से कर लिया, जूम से कर लिया, किसी से भी कर लिया, ग्रुप कॉल किया, देख भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, एक अच्छा कनेक्ट भी हो रहा है फ्रेंड से। इंग्लिश का इंग्लिश और फ्रेंडशिप की फ्रेंडशिप, बेस्ट है। तो इंग्लिश वाले पे काम करिए प्लीज़, बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंट होना एक जगह है, बट इंग्लिश अच्छी होना दूसरी जगह है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने खुद ने भी हिंदी मीडियम से ही किया, 12th तक मेरा एजुकेशन हिंदी मीडियम था। बट उसके बाद फर्स्ट ईयर में जाके इंग्लिश में स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस करी। इसी प्रैक्टिस के कॉन्टेक्स्ट में बोलता हूँ, एक टोस्ट मास्टर्स करके चीज़ होती है। इफ़ यू हैव नॉट हर्ड इट, आप सर्च करिए toastmasters.org। वहाँ पर कुछ लोग हफ्ते में 2 घंटे के लिए मिलते हैं, आपस में बात करते हैं और बात करके प्रैक्टिस करते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग इंग्लिश में कैसे करी जाए। toastmaster.org, आप इसको सर्च कर दीजिएगा, ज्वाइन करिए। बहुत सस्ता होता है, महीने में 600-700 रुपये उसकी फ़ीस होती है, हफ्ते में 4 क्लास 2 घंटे की। दैट्स बट इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जैसे आपने ये बोला कि भाई टेल मी समथिंग अबाउट, अब जाओगे इंटरव्यू के लिए तो सबसे पहले लोग बोलते हैं कि भाई टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आप हो, आपको लगता है कि इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता क्या लोगों को? यही फर्स्ट क्वेश्चन होता है। और आपके सीवी में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है, वो वहीं से पढ़ लो यार, मुझसे क्यों पूछते हो? टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, दिस क्वेश्चन इज नॉट अबाउट कि आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है, इट्स अबाउट कि हाउ यू आर गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन। इट्स नॉट अबाउट व्हाट एंड हु यू आर, इट्स ऑलवेज अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू आंसर दिस। हाउ वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको जब भी कोई बोलता है टेल मी समथिंग अबाउट सेल्फ, थॉट अबाउट हाउ आई एम गोइंग टू आंसर दिस। क्या मैं इसको इन्फॉर्मेशन बताऊं, क्या ना बताऊं, सीक्वेंस में होनी चाहिए। बी प्रिपेयर्ड, हर कोई ये क्वेश्चन पूछता है, बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। और इसके अंदर क्या बताना इंपॉर्टेंट है, इसके साथ में ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं बताया। स्टार्टिंग के 5 मिनट के अंदर एज अ रिक्रूटर 90% केसेस हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि इसको हायर करना है कि नहीं करना। 5 मिनट स्टार्टिंग के, उसमें से एक क्वेश्चन टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ होता ही है। तो आपको इसके लिए तैयार करना ही है। क्या बताना है, कैसे बताना है, स्ट्रक्चर होना चाहिए। अपने बारे में बताइए, एजुकेशन बताइए, एक्सपीरियंस बताइए, फैमिली बताइए। सबसे पहले ज़्यादा रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। रिमेंबर यूएसपी वी स्पोक, यूनिक सेलिंग प्रमोशन, आप में क्या अलग है उसके बारे में पहले बात करिए, कॉन्फिडेंटली बात करिए।
आराम से बात करिए, समझ में आए, आई कांटेक्ट रखिए, देखिए उसको, शुड लुक कॉन्फिडेंट। सेकंड क्वेश्चन, या फिर मैं एक क्वेश्चन, मतलब सेकंड तो नहीं, मतलब रैंडमली, बट एक क्वेश्चन ये आता है कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 इयर्स। अब बहुत सारे बार आपने देखा होगा कि लोग ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं और आप उसके कुछ कुछ मतलब रैंडम आंसर देना शुरू हो जाते हो कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इसका जो आंसर है, इट्स नॉट कि आप कहाँ जाना चाह रहे हो। उनका इसको पूछने का वाई जो है वो ये है कि आप हमारे साथ में अगले 5 साल रहना चाहते हो, और जो हमारा करियर प्रोग्रेशन है, क्या आपका भी एस्पिरेशन वही है? क्या आप हमारे साथ में अलाइन होकर, जुड़कर 5 साल तक काम कर पाओगे? ये चीज़ें असेस करनी होती हैं। तो पॉइंट इज कि अगर आप टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया है, तो उसी ट्रैक में 5 साल का जो भी प्रोग्रेशन उस पर्टिकुलर कॉलेज में होता है, क्या आप भी उस टाइप का प्रोग्रेशन देख रहे हो? 5 साल बाद आप कहना चाहते हो कि मुझे प्रोफेसर बनना है, और आई मीन वट एवर द पॉइंट इज कि इट्स ऑलवेज अबाउट वाई दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, उसके बारे में सोचिए। एक क्वेश्चन होता है कि अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बताइए। अब स्ट्रेंथ बताना बड़ा आसान, कोई मुझसे स्ट्रेंथ पूछे, मैं आज बोलना शुरू हूँ तो अभी 10 मिनट 20 मिनट में स्ट्रेंथ के बारे में बात कर पाऊंगा। मैं ये बता दूंगा मुझे ये आता है, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, मुझे ये भी आता है, और आपको ये तो भूलिएगा मुझे ये भी आता है। बट जब वीकनेस बोलते हैं ना, तो या तो हमें पता नहीं होती, या फिर हम बताना नहीं चाहते, या फिर हम ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। अब मैं बताता हूँ कैसे। पहला, आपको, आपने सोचा ही नहीं कि यार मतलब इंटरव्यू मुझसे वीकनेस भी पूछ लेगा, तो आपको नहीं पता, आप उस टाइम नहीं पता, थोड़ा सोचोगे तो कुछ एक आध याद आएगी, रैंडमली आप बोल दोगे। सेकंड हो रहा है कि आप बताना नहीं चाह रहे हो, तो ठीक है आपको पता है, बट आप सोच रहे हो इसको मैंने बता दिया तो अपना वीकनेस दिखा दोगे तो मतलब रिजेक्ट कर देगा, नहीं कुछ बताओ, ऐसे ही अनजान बन जाओ कि नहीं सर मुझे नहीं याद आ रहा वीकनेस क्या हो सकती है। थर्ड होता है ओवर स्मार्ट बनना। वो क्या होता है कि आपको वीकनेस अपनी पता है, अपनी स्ट्रेंथ पता है, बट अपनी स्ट्रेंथ को ना वीकनेस बना के बताने की कोशिश करोगे। बहुत लोग करते हैं, बोलेंगे सर आई एम वेरी हार्ड वर्किंग। मैंने कहा अच्छा भाई, वीकनेस कैसे है? सर व्हेन आई स्टार्ट ना, आई वर्क टिल 11 o'clock। अच्छा ठीक है, ये तो मेरे लिए तो अच्छी बात है, तेरे लिए क्यों वीकनेस है? सर देन आई डोंट रिमेम्बर कि मेरा पर्सनल एंड पे कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, मुझसे काम ही नहीं हो, मुझे कुछ और काम पता ही नहीं रहता, मुझे मेरी पर्सनल लाइफ जो है ना हैम्पर कर रही है सर, इसलिए मेरी वीकनेस है। अब स्मार्टनेस ये हो रही है कि अपनी स्ट्रेंथ को वीकनेस बता के बताने की कोशिश कर। बट भाई हम लोग रिक्रूटर, डेली का काम है, रोज का काम है, रोज इंटरव्यूज हो रहे हैं, सालों से इंटरव्यूज कर रहे हैं, हमें पता है बहुत सारे लोग अपनी स्ट्रेंथ को वीकनेस बताते हैं। सो प्लीज डोंट डू दैट, बी ऑनेस्ट, बी सिंसियर। आप ऐसी वीकनेस बताइए जिसका आपकी वाली जॉब पर इम्पैक्ट कम हो, बट प्रोफेशनल वीकनेस होनी चाहिए। ऐसे स्मार्ट ओवर स्मार्ट नहीं करना, प्रोफेशनल वीकनेस बताइए, सोचिए, लिखिए, और वो वीकनेस बताइए जो इस पर्टिकुलर जॉब में कम से कम इस्तेमाल होती हो। अब की कुछ लिस्ट बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको एक और चीज़ रेकमेंड करना चाहूँगा। देर इज़ अ बुक, आप गूगल का, उसका नाम है 64 टफेस्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस। गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा 64 टफेस्ट इंटरव्यू क्वेश्चन। इसके अंदर आपको 64 डिफरेंट डिफरेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उनको समझ पाओगे, उसका वाई पार्ट क्या है, उसको जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा था मैंने भी वहीं से सीखा है। बहुत अच्छी बुक है, आप पढ़िएगा, गूगल में फ्रीली अवेलेबल है, आपको आराम से मिल जाएगी 64 टफेस्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो ये हमारी कुछ चीज़ें थी जो हमने शेयर कर ली, और मैं इसको जस्ट अगर अगर फिर से मतलब दोबारा से समराइज़ करूँ, तो पहले मैंने सबसे पहले ये बोला था कि हमारे अब लॉकडाउन के बाद में क्या सिचुएशन होने वाली है, कैसे सिनेरियो चेंज होने वाला है, क्या क्या डिफरेंट चीज़ें होने वाली हैं, और उसमें हम कैसे और बियॉन्ड देख सकते हैं। पर्टिकुलर जॉब्स के अलावा स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के बारे में काफ़ी बात होती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप फिगर आउट करिए, ओपन योर माइंड, इट्स वेरी 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 रिक्वायर्ड। अब सेकंड बात हो रही है कि जॉब सर्च टेक्निक्स के बारे में बात करें कि रेफरेंसेस के थ्रू हो सकता है, जॉब पोर्टल्स के थ्रू हो सकता है, नेटवर्किंग, लिंक्डइन, इनके बारे में बात करी। द थर्ड थिंग इज कि सीवी जो है वो कैसे बनाया जाए, उसके बारे में कुछ मैंने टिप्स आपको दिए, कुछ चीज़ें मैंने शेयर की। आपके और क्वेश्चंस हो आप मुझसे
कमेंट्स में पूछिए, हम लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। टीम है, मैं भी बैठ के आंसर कर दूंगा, तो आप पूछिएगा। और मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। आप अगर ईमेल लिखना चाहते हैं तो दो ईमेल आईडी हैं। एक तो है pefioffice@gmail.com, pefioffice@gmail.com। मेरा ईमेल आईडी UAkharia UAKHARIA@gmail.com। इस पे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, यहाँ कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इनबॉक्स में मैसेज भेज दे सकते हैं पैफी पेज को। इसके अंदर भी आपको उनका आंसर देने की कोशिश करी जाएगी। फिर उसके बाद हमने मॉक इंटरव्यूज़ में कुछ क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करी। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, नहीं कर पाया, बट द आइडिया इज़ कि आपको प्रिपेयर होके जाना होता है, रैंडमली नहीं जाना कि चलो चलो इंटरव्यू दे के आते हैं आज। कहीं टाइम पास करने वाली बात नहीं हो, इट्स अ सीरियस बिजनेस, योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन इट। तो उसी तरीके से आप इसको लेंगे और समझेंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चन जो है अपने चैट बॉक्स में से देखता हूँ कि किस किस टाइप के क्वेश्चन मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा स्क्रॉल करने में टाइम लग रहा है। और ये जैसे ही नया क्वेश्चन आता है, ये मेरा विंडो जो है वो ऊपर से नीचे जाता है। तो एक पॉइंट कहा गया कि भाई अगर आपको इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तो आपको कॉन्वर्सेशन करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही है, डॉक्टर अरुणा हैं जिन्होंने ये पॉइंट कहा है। और मैं स्क्रॉल करके और देखना चाह रहा हूँ कि स्पोर्ट्स में किस किस टाइप के जॉब ऑप्शंस हैं, ये भी पूछा गया है। तो इसके बारे में हमने एक प्रेजेंटेशन पेफी के थ्रू बना रखी है, और वो प्रेजेंटेशन की कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएंगी। हमारी टीम आई एम श्योर कि उसको पोस्ट कर रही है, अदरवाइज विल डू इट लेटर। और बहुत सारे हम अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज कहाँ से कर सकते हैं, कितनी मतलब यूनिवर्सिटीज़ हैं, कंप्रिहेंसिव लिस्ट नहीं है, पूरी नहीं है, बट कोशिश करी गई है कि वो सारी कवर किए जाएं। आपको वो सब वहाँ पर क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। और देखते हैं और क्या क्वेश्चन आए हैं। और आप लोग मुझे अच्छा बता रहे हैं, बहुत थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और अच्छा लगता है कि आप कोई काम करें और लोग उसको समझें, उसको अप्रिशिएट करें। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली मैंने मोबाइल फ़ोन के थ्रू कनेक्ट किया है, और काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है इसके अंदर समझ पाना। ये स्क्रॉल करता हूँ, कोई नया क्वेश्चन आता है तो ऊपर चला जाता है, बड़ी कन्फ्यूज़न हो रही है। और माई टाइम इज़ ऑल्सो अप, तो आई थिंक पंक्चुअलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आर लाइफ। हम 1 घंटे का सेशन करते हैं, 2 बज चुके हैं, और मैं इसको समाप्त करना चाहूँगा। और मैं आपसे सबसे फिर से ये अनुरोध और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पैफी लाइव के थ्रू, पैफी की मुहिम है कि हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जितनी पॉसिबल हो डिफरेंट डिफरेंट एरिया से आपके साथ में शेयर करें। और आप सारी इन्फॉर्मेशन नहीं बता पाएंगे, बट माइंड इग्नाइट कर पाएंगे, वो चिंगारी आपको लगा पाएंगे। बाकी काम आपको अपने आप करना पड़ेगा। आपके सराउंडिंग में बहुत सारे लोग हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। प्लीज़ रीच आउट टू देम, प्लीज़ आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ आस्क फॉर हेल्प, दे विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। और अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, सब लोग फ्री हैं, आपके साथ में सब लोग अभी मतलब करना चाहेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि डेली 1 बजे पैफी एफबी लाइव जो हम एक सीरीज़ कर रहे हैं 3 मई तक कंटिन्यू होगी। इसके अंदर और भी मतलब एक्सपर्ट आने वाले हैं। कल हमारे साथ में डॉक्टर विक्रम सिंह आएंगे जो कि जेएनयू में एचओडी हैं, और वो आपके साथ में इंफॉर्मेशन काफ़ी सारी शेयर करेंगे। सो ही इज़ फ्रॉम एकेडमिक बैकग्राउंड एंड ही इज़ वेरी गुड स्पीकर। तो आपके साथ में ये इंफॉर्मेशन शेयर करोगी। परसों डे आफ्टर टुमारो मीनाक्षी मैम आएंगी। मीनाक्षी मैम एक स्विमिंग की बहुत अच्छी एथलीट, जाना माना नाम है, एक स्पोर्ट्स पर्सन बैकग्राउंड से हैं, आजकल दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट। तो एक आपको मिक्स नज़र आएगा। तो डेली एट 1 o'clock प्लीज़ ज्वाइन। रिमेंबर वी आर हेयर टू हेल्प यू। हम आपके साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करके आपको ये चीज़ इंक्रीज कराना चाह रहे हैं। थैंक you very much for joining, and see you tomorrow with not me, with some other expert, with PEFI FP live at 1 p.m. daily. Thank you very much.